Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Realize Study. This is the book of grade 7, New Oxford Modern English for grade 7. Chapter number 4, The Story of an Invitation. In today's video, we are going to solve all questions of this chapter step by step. First of all, we will cover comprehension. Comprehension consists of many parts. Next section B, working with words, लफ्ज़ों के साथ काम करना. All question of this exercise is solved and I have made note of this chapter. After that, learning about language. G part is listening and speaking. And finally, we will finish with composition. So make sure to watch the video till the end because every single question is solved here. Now, let's jump straight to the first question. First question means first part of this exercise is comprehension. Comprehension means समझ कर पढ़ना. Answer the following question. In what respect were the two girls different from each other? किस तरह दोनों लड़कियां एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं? Bertha was cheerful, popular, and came from a loving home. Grace was quite serious, poor, and had no family. Bertha खुशमिजाज, मकबूल और मोहब्बत करने वाले घराने से ताल्लुक रखती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है How did Bertha celebrate? क्वेश्चन बुक से मुकम्मल करें. आंसर में लिखें Bertha celebrated by buying caramels and sharing chocolates with Grace. Next question 3. What do we learn about Aunt from what Bertha says about her? Bertha की बातों से हम खाला के बारे में क्या जानते हैं? Bertha's aunt is kind, loving, cheerful and understanding. She cares deeply for others and loves to make people happy. बर्ता की खाला मेहरबान, मोहब्बत करने वाली, खुशमिजाज और समझदार हैं. वो दूसरों का ख्याल रखती हैं और लोगों को खुश करना पसंद करती हैं. यानी उसे कोई और दूसरा उससे खुश हो वो उसे अच्छा लगता है. क्वेश्चन डी व्हाट डू यू थिंक इट मीन? क्वेश्चन बुक से मुकम्मल करें और इसकी मीनिंग है क्या बर्ता को ये अच्छा लगा कि ग्रेस सारा मौसम में काम करे? इसके आंसर में आप लिखें इट्स मीन्स दैट मैरी, लो and Lil have similar interests and personalities so she would really like and enjoy being with them. Next question E है What made Grace wistful? Grace क्यों हैरत ज़दा हुई? Grace felt wistful because Bertha had loving friends and a fun vacation planned while she had no family and had to work during the holidays. क्योंकि बर्ता के पास प्यार करने वाले लोग और खुशगवार छुट्टियां थी जबकि ग्रेस को काम करना पड़ रहा था. वो अकेली थी. They had no family यानी उसके साथ फैमिली को कोई मेंबर नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन है Did Bertha think it was? क्वेश्चन बुक से मुकम्मल करें. No, Bertha thought it was a bad idea because Grace was not strong and needed rest. नहीं, इसने कहा ये बुरा ख्याल है क्योंकि ग्रेस कमजोर थी और इसे आराम की जरूरत थी. क्वेश्चन जी है फ्रॉम व्हाट ग्रेस एंड अर्न? क्वेश्चन बुक से मुकम्मल करें. क्वेश्चन की मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. खुतूत से हमें कैसे पता चलता है कि ग्रेस ने आंटी के साथ अच्छा वक्त गुजारा? ग्रेस wrote that she had a lovely time and was going to stay there always. Aunt Meg said Grace had became plump and rosy, showing she was happy and healthy. ग्रेस ने लिखा कि इसने खूब मज़ा किया और हमेशा वही रहेंगी. आंटी ने लिखा कि ग्रेस सेहतमंद और खुशगवार है. क्वेश्चन नंबर एच है व्हाट डिड बर्ता डिसाइड? बर्ता ने कब और क्यों फैसला किया कि ग्रेस को अपनी आंटी के पास भेजे? आंसर है बर्ता डिसाइडेड एट नाइट. बर्ता ने रात को ये फैसला किया आफ्टर सीइंग हाउ वीक ग्रेस लुक्ड कि जब इसने देखा कि ग्रेस कमजोर है. शी न्यू ग्रेस नीडेड रेस्ट एंड हैप्पीनेस सो शी चूज टू गिव अप her own trip for her friend. Question I है Would you say that Bertha really was a good angel? In what way was her sacrifice worthwhile? पहले क्वेश्चन की मीनिंग जान लेते हैं. क्या बर्ता वाकई एक नेक फरिश्ता थी? उसकी कुर्बानी किस तरह काबिल कदर साबित हुई? इसके आंसर में आप लिखें Yes, because she gave up her holiday so Grace could rest and be happy. Her sacrifice was worthwhile as Grace found a loving home with Aunt Meg. हाँ, उसने अपनी छुट्टियां कुर्बान करके ग्रेस को भेजा. ये कुर्बानी कीमती साबित हुई क्योंकि ग्रेस को एक नया प्यार भरा घर मिला. ओके,
कंप्रिहेंशन के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है, इसी के अबाउट नीचे क्वेश्चन गिवन है। सेंटेंस है आई शैल हैव टू मैनेज देयर अफेयर वेरी केयरफुली। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेज दीज वर्ड्स टू एंड टू होम। किसने ये अल्फाज कहे थे? बर्ता सेज दीज वर्ड्स टू हरसेल्फ। बर्ता ने अपने आप से ये अल्फाज कहे थे। व्हाट वाज द अफेयर दैट हैड टू बी मैनेज केयरफुली। इसी का आंसर लिखें। अरेंजिंग फॉर आंट मैग इनवाइट ग्रेस इन हर प्लेस विदाउट लेटिंग ग्रेस नो इट वॉज डन ऑन पर्पस। मामला ये था कि वो अपनी छुट्टियां ग्रेस के लिए कुर्बान करना चाहती थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द स्पीकर प्लान। क्वेश्चन बुक से मुकम्मल करें। इसके आंसर में लिखें She planned to tell Grace that she couldn't go to Aunt Meg's and had asked her to invite Grace instead. Without revealing, she gave up the trip for her. Next sentence है You are not strong and you need a good rest. इसी के about भी 3 question है। Who says these words and to whom? किसने और क्यों ये अल्फाज कहे थे और किससे कहे थे? बर्ता says these words to Grace. बर्ता ने ये अल्फाज ग्रेस को कहे थे। सेकेंड क्वेश्चन है Why did the person being। क्वेश्चन बुक से मुकम्मल करें। आंसर में लिखें Because Grace was pale, thin and weak and working all summer would be too tiring for her। क्योंकि ग्रेस पेल यानी पेल बोलते हैं जर्दी कलर जो हो जाता है उसको बोलते हैं पेल। पत्ती हो गई थी, कमजोर हो गई थी क्योंकि उन्होंने सारी गर्मियां काम किया था। What did this person being planning to do during the holiday? आंसर में लिखे She had been planning to work at Clerkman's bookstore all summer. ग्रेस ने गर्मियों में क्लर्कमैन के बुक स्टोर पर काम करने का इरादा बनाया था। Don't think me ungrateful। इसी के अबाउट क्वेश्चन है Who says these words, how and to whom? आंसर में लिखे Bertha says these words in a letter to Aunt Meg। ऐसे आंसर यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आगे भी लिख सकते हैं। While explaining why she want to give her invitation to Grace। Second question है why might the speaker appear to be ungrateful? Because she was giving up Aunt Meg's holiday invitation, which could seem like she didn't appreciate it. Question number 3 है list down the sequence of event to trace the beginning, middle and the end of the story of an invitation. Fill in the table below with the required detail। required detail के मुताबिक यहाँ पे जो टेबल गिवन है इसको फिल करना है। मैंने इस क्वेश्चन को बुक में ही सॉल्व किया हुआ है, मैं रीड करूंगी। इन द बिगिनिंग में क्या हुआ था? बर्ता receives a holiday invitation from Aunt Meg and happily shares the news with Grace। बर्ता को आंटी की छुट्टियों की दावत मिली और उसने खुशी से ग्रेस को बताया। In the middle, Bertha learns Grace plans to work all summer, sees she is weak and decides to give her place to Grace without letting her know। Okay, in the end में क्या हुआ था? Grace enjoys her stay, become healthy and happy and Aunt Meg decide to adopt her। ग्रेस खुशखुरम रही, सेहतमंद हुई और आंटी ने इसे अपनी बेटी बना लिया, यानी अडॉप्ट कर लिया। बी वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्जों के साथ काम करना। यूज द फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेज इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ फ्रेज का मतलब है एक वर्ड से ज्यादा ये सेंटेंस टाइप का लिखा हुआ है, ये फ्रेज है। और वन वर्ड जो है जैसे कि मॉर्निंग, इनकी सेंटेंसेस राइट डाउन करने हैं, मैंने इसके नोट बनाए हैं, आपसे शेयर करूंगी। मॉर्निंग, शी वॉज इन मॉर्निंग आफ्टर हर पेट डाइड। वो अपने पालतू जानवर की मौत पर सोग में थी। मॉर्निंग का मतलब है सोग में होना। जरा इस वर्ड को गौर से देखें, MOR, अगर यहाँ से यू हटा दिया जाए तो मॉर्निंग बन जाएगा। फिटिंगली, ही फिटिंगली वोर अ सूट टू द वेडिंग। इसने शादी पर मुनासिब लिबास पहना। आफ्टर योर ऑन हार्ट का मतलब क्या है? जो तुम्हारे दिल को बहुत पसंद आए, इसे क्या बोलते हैं? आफ्टर योर ऑन हार्ट। दैट केक शॉप इज आफ्टर योर ऑन हार्ट बिकॉज यू लव स्वीट। विस्टफुली, शी लुक्ड विस्टफुली एट द टॉय इन द शॉप विंडो। बच्चा हसरत से, विस्टफुली का मतलब है हसरत, बच्चा हसरत से खिलौनों को देख रहा था। डार्टेड, द माउस डार्टेड इनटू इट्स होल। डार्टेड का मतलब है बहुत तेजी से माउस यानी चूहा होल में चला गया। सोलमली,
solemnly का मतलब है संजीदगी से। He spoke solemnly funeral, फौतगी में वो संजीदगी से बोल रहा था। On purpose का मतलब है जानबूझकर, जैसे अभी क्वेश्चन में भी आया था। On purpose का मतलब है जानबूझकर। She spilled the juice on purpose to get her brother in trouble. अपने भाई को परेशान करने के लिए उसने जानबूझकर जूस को गिराया। Think me ungrateful, नाशुक्रा ना समझना, मुझे नाशुक्रा ना समझना। इसका आपने सेंटेंस लिखना है, Don't think me ungrateful. If I can't come to your party, अगर मैं पार्टी में ना आ सकूं तो मुझे नाशुक्रा ना समझना। नेक्स्ट वर्ड है cordial. The teacher give the new student a cordial welcome. cordial का मतलब है गर्मजोशी से। टीचर ने गर्मजोशी से नए स्टूडेंट का इस्तकबाल किया या उसको वेलकम किया। इंटेंट टू का मतलब है I intend to clean my room today. मैं आज कमरा साफ करने का इरादा रखता हूँ या रखती हूँ। वर्किंग विद वर्ड्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड बाय सॉल्विंग द क्लॉज। ऑल द वर्ड अपीयर इन द स्टोरी आफ्टर अपार्ट फ्रॉम वन, विच वन। इस क्वेश्चन को भी मैंने यहीं पे सॉल्व किया हुआ है। When something is finished or complete, we say it has. जब कोई चीज कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, क्या लफ्ज यूज करते हैं, ended. Not lies, truth. When we have put on our clothes, we are dressed. Something that is liked by many is popular. काफी सारे लोग जब किसी को जानते हैं, यानी जब बंदा जब मशहूर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लाइक करना शुरू करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉपुलर कहते हैं। When you get to the top of something, we say you have scaled it. To believe or think that someone is true or real. अच्छा, ये scale word जो है ये कहानी में नहीं है, ठीक है। To believe or think that something is true or real, इसका वर्ड लिखें आप, समझना यानी ख्याल करना। Suppose, not clear or precise, indistinct, vague, schemes, arrangement, programs, plans. Next page पे आ जाए, down, to get away from, to get free, escape. Belonging to them, there, a small plant, lily. With grace became after a while, at Aunt Max, plum. Takes into one's family by legal means and rises as one's own child, adopt. ADOPTS, adopts. Shut, close. Learning about language, ज़बान के बारे में सीखना। इस पैराग्राफ में क्लॉजेस एंड फ्रेजेस के बारे में काफ़ी तफसील से समझाया गया है। इसी के अबाउट नीचे क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग एंड पुट इनटू 3 कॉलम्स। फ्रेज, subordinating clause, main clause, sentence. Add the correct punctuation to the sentence to make sentence using the phrases and subordinating clause. यहाँ पे कुछ sentences या phrases और words given है जिसको अलग अलग कॉलम्स में लिखना है, यानी कि 3 कॉलम्स बनाने हैं। फ्रेज वाले वर्ड्स को अपने फ्रेज में लिखना है, सबऑर्डिनेटिंग्स को अलग में लिखना है, मेन क्लॉज को अलग में लिखना है। मैंने इसके नोट बनाए हैं, आपसे शेयर करूंगी। फ्रेज में आपने लिखना है वेरी हैप्पी, रियली क्विकली, लाइक अ बेल वाज सिंगिंग, टेक दैट अवे। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में लिखें बिकॉज इट हर्ट्स अ लॉट, अनलेस यू वांट इट टू मच, व्हाइल आई वेट। ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और मेन क्लॉज में आपने लिखना है मलिक रन्स ऑफन, दे चेस्ड द बॉल, इट मस्ट स्टार्ट। ये क्या है, मेन क्लॉज है, यहाँ से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंसेस के बारे में काफी तफसील से समझाया गया है। उम्मीद है आप ये पैराग्राफ खुद रीड कर सकेंगे। ओके, यहाँ तफसील बताई गई है। लेबल द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में इंडिकेट करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। जैसे कि इस सेंटेंस में वी जो है वो सब्जेक्ट है, चॉकलेट क्या है, प्रेडिकेट है। वी सब्जेक्ट है, चॉकलेट प्रेडिकेट है। लास्ट नाइट आई ओनली स्लेप्ट अ लिटिल, लास्ट नाइट एडवर्ब फ्रेज है, आई सब्जेक्ट है, ओनली स्लेप्ट अ लिटिल ये प्रेडिकेट है। ओह वी एट द डिलीशियस चॉकलेट सो क्विकली, ओह सब्जेक्ट है, वी प्रेडिकेट है। इट फेल ओवर, इट इसमें सब्जेक्ट है और नेक्स्ट वर्ड प्रेडिकेट है। वेरी स्लोली, वेरी सब्जेक्ट है, स्लोली प्रेडिकेट है। विदाउट अ साउंड, इट फेल ओवर ऑन टू इट्स साइड। लास्ट सेंटेंस है दे रन, दे सब्जेक्ट है, रन प्रेडिकेट है। बी पार्ट है डिस्कस द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देन लेबल देम टू सी वेदर दे आर सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ जो सेंटेंसेस गिवन है इनमें बताना है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है या फिर
सिंपल सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैड अ नाइटमेयर, ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक ही मेन क्लॉज है तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन आई वाज लिटिल आई स्लेप्ट इन अ वुडन कॉट, ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें कोऑर्डिनेट है व्हेन आई वाज लिटिल, और जबकि क्लॉज 2 मेन है आई स्लेप्ट इन अ वुडन कॉट, तो इसमें एक सब ऑर्डिनेट है और एक है मेन क्लॉज। तो इसे कौन सा सेंटेंस कहेंगे, यहाँ मैंने सिंपल लिखा हुआ है, ये सिंपल सेंटेंस में काउंट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई स्लेप्ट, आई सब्जेक्ट है, स्लेप्ट प्रेडिकेट है, सिर्फ एक मेन क्लॉज है इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी एट बट आई वाज स्टिल हंग्री, है तो ये कंपाउंड सेंटेंस। मेन क्लॉज क्या है, वी एट, ये मेन क्लॉज है। क्लॉज 2 मेन क्या है, आई वाज स्टिल हंग्री, और कंजक्शन के लिए इस यहाँ पे बट लगा हुआ है। सो दो कंपाउंड और मेन क्लॉज से मिलके ये क्या हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है फेल ओवर येट इट डिड नॉट मेक अ साउंड, ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब तफसील जानते हैं कि क्यों कंपाउंड सेंटेंस है। क्लॉज 1 है इसमें इट फेल ओवर, सेकंड मेन क्लॉज है इसमें इट डिड नॉट मेक अ साउंड, और कंजक्शन के लिए यहाँ पर येट लगा हुआ है। कंजक्शन किसे कहते हैं, दो जुमलों को मिलाने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं बीच में उसे कंजक्शन कहा जाता है। सो ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट है द 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कैन बी 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें एक है डिक्लेरेटिव, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव, और नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। अ सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। हर सेंटेंस जैसे कि आप जानते हैं कि वो सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जब एंड होता है तो फुल स्टॉप लगता है या फिर क्वेश्चन मार्क लगता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। अब इसी के अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबल 3 सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। सो अब जानेंगे इनमें कौन सा सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है, या फिर इंपेरेटिव है। देयर आर 6 ब्यूटीफुल बर्ड्स इन द ट्री, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यानी बयान देने वाला जुमला है। डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट दैट, क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा ये सवालिया जुमला है, इसको हम लिखेंगे इंटरोगेटिव। टेक 2 टेबल्स एवरी 4 आवर्स, यहाँ पे हुक्म दिया गया है यानी हिदायत दी गई है, सो हम इसके आगे लिखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। ही इज अ ग्रेट राइटर, ये डिक्लेरेटिव है। इट्स अ डिजास्टर, एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, सो हम यहाँ लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी। लास्ट सेंटेंस है रन फॉर योर लाइफ, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, सो ये कौन सा है। वैसे ये इंपेरेटिव सेंटेंस भी बन सकता है क्योंकि ये हुक्म भी है और जोरदार जज्बात भी दिखा रहा है, दोनों चलेंगे इसमें। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंपेरेटिव लिख लें तो तब भी आपकी टीचर क्रॉस नहीं लगाएंगी, ज्यादा बेहतर एक्सक्लेमेटरी है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम इस सेंटेंस को क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में हुक्म दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट योर ऑन डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मुझसे एक जुमला मैंने लिखा हुआ है, आपसे भी शेयर करूंगी। डिक्लेरेटिव का लिखे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, इंटरोगेटिव का लिखे आर यू कमिंग टू स्कूल टुमारो, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। एक्सक्लेमेटरी में लिखे व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट इट इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना भी ना भूलिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में लिखे प्लीज क्लोज द डोर क्वाइटली, आप भी बहुत कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इमेजिन यू आर वन ऑफ द 2 गर्ल्स इन द स्टोरी एंड यू आर मीटिंग other for the first time. You want to know more about the other girl. Here are some way to start asking question. Imagine करें कि आप कहानी में से 2 लड़कियों में से एक लड़की हैं और अभी आप दूसरी लड़की से मिली हुई हैं। आप दूसरी लड़की के बारे में जानना चाह रही हैं तो आप अपनी बात का आगाज इस तरह के सेंटेंसेस से कर सकते हैं। इन सेंटेंस को एक दफा पढ़ लें। फिर आगे क्वेश्चन है वर्क विद अ क्लासमेट एंड प्रैक्टिस आस्किंग क्वेश्चन like the ones given. Your classmate should give answer then swap rules. अभी आपने क्या करना है कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो कि यहाँ ऊपर गिवन है अपनी क्लासमेट से आप इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये 2 बंदे, पहले एक बंदा जो है इस तरह के क्वेश्चन करेगा, फिर दूसरा वाला बंदा क्वेश्चन करेगा और पहले वाला आंसर देगा। मैंने भी इसी का आंसर लिखा हुआ है, आपसे शेयर करूंगी। स्टूडेंट ए बोले could you please tell me your hobbies are? स्टूडेंट बी कहे my hobby is drawing. Student A, could you please tell me your favorite film?
Student B, my favorite film is Frozen. Student A, I would love to know what places you have visited. Student B, I have visited Karachi and Lahore. Student A, would you mind telling me who your favorite author is? Student B, my favorite Roald Dahl. Student A, something I would like to know is what food you like. Student B, I like biryani. Same here, he is the best. ओके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कंपोजिशन के अबाउट है। इनके भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, नोट बनाए हुए हैं, आपसे शेयर करूंगी। इन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये वीडियो आपके काम आ रही है, आपको इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन इसलिए प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सकेगा, आप इन्फॉर्म हो सकें। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं क्योंकि ऐसे बच्चे जो मुझे हिली एरियाज से देख रहे हैं, हिली एरियाज के पेपर प्लेन एरियाज के मुकाबले में जल्दी हो जाया करते हैं, तो प्लेन एरियाज के बच्चों को हिली एरियाज के पेपर जो है वो चाहिए होते हैं, एज अ मॉडल पेपर चाहिए होते हैं। तो जो बच्चे मुझे हिली एरिया से देख रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332577053, इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ, चाहे वो पिछले साल के पेपर हैं, चाहे वो इस साल के पेपर हैं, वो मेरे साथ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। उन पेपर्स को मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगी ताकि बच्चों का फायदा हो सके। अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 एलिमेंट के बारे में यहाँ पे तफसील बताई गई है, लेकिन मैं आपको द स्टोरी ऑफ एन इनविटेशन के करेक्टर्स के बारे, सेटिंग और एक्सपोजिशन, क्लाइम और रिजोल्यूशन भी साथ में बताऊंगी। करेक्टर में एमी लाइवली, चीयरफुल एंड फ्रेंडली थी। किटी कैसी थी? शाई थी, क्वाइट थी एंड रिजर्व्ड थी। आंट मिग काइंड एंड लविंग थी, शी इनवाइट्स द गर्ल्स। अदर क्लासमेट्स कैसी थी? बैकग्राउंड, करेक्टर एट द स्कूल। इस चैप्टर में सेटिंग में मोस्टली एट स्कूल वेयर एमी एंड किटी स्टडी टुगेदर। लेटर एट द आंट मैग्स हाउस वेयर द इनविटेशन टेक प्लेस। द स्टोरी इज सेट in an earlier time period, not modern, more old-fashioned. Exposition में यानी beginning में क्या हुआ था? Amy and Katie are classmates but very different in nature. Amy receives an invitation from Aunt Meg for summer. Amy doesn't go and gives the chance to Kitty instead. Climax यानी turning point क्या था? इसमें turning point क्या था? ये यहाँ से आप नोट कर ले। Resolution यानी ending में Kitty returns much improved in health and spirit. Amy feels happy for her friend. The invitation leads to a stronger bond of friendship between them. ये इसलिए मैंने आप लोगों को लिख के दिया, शायद हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए कि आप स्टोरी ऑफ इनविटेशन की रिजोल्यूशन लिख दें या फिर क्लाइमैक्स लिख लें, एक्सपोजिशन लिख लें या सेटिंग लिख लें, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ बायोग्राफी ऑफ अ पर्सन ऑफ योर चॉइस। किसी शख्स की आपने बायोग्राफी लिखनी है, लेकिन उसकी में आपने ये नहीं लिखना कि वो कहाँ पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था, इंटरेस्टिंग सी डिटेल लिखनी है। ओके, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, आपसे शेयर करूंगी। अब्दुल सत्तार ईदी वॉज one of the greatest humanitarians of Pakistan. He believes in serving people regardless of their religion, caste or status. Starting with a small clinic in Karachi, he later founded the Eidi Foundation, which became the largest welfare organization in Pakistan. His services included free hospital shelters for the homeless, homes for orphans yatim को बोलते हैं, and the world's largest ambulance network. Eidi and his wife Bilkis Eidi worked day and night to help the poor and needy. Despite his great work, he lived a very simple life. He wore plain clothes and never used money for himself. People lovingly called him Angel of Mercy. Abdul Sattar Eidi's life is an example of kindness, sacrifice and love for humanity. ओके, इससे नेक्स्ट वीडियो में द नेमिंग ऑफ कैट्स की फुल एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।